ठीक है। अच्छा आपने The period before the development of script is prehistoric time or Stone Age, including South Asia. The earliest human ancestor migrated out of Africa was Homo erectus. In India, there were present was between 2 million and 1 million years ago. It is divided into Stone Age, Bronze Age, and Iron Age, and are identified on the names of material, geographical region, and first site. Paleolithic tombs identified by Robert Bruce Folk in 1863 Kalvaram were hand axes, cleavers, chopper with design, symmetry, and quality for hunting, skinning, and butchering. आप बताओ। The time period before the development of the script is prehistoric times and also referred to Stone Age. Human ancestor that migrated from South Africa was Homo erectus. Prehistory is further divided into Stone Age, Bronze Age, and Iron Age. Paleolithic tools identified by Robert Bruce Folk in 1863 in Kalvaram were indexes, cleavers, choppers with design, symmetry, and quality for hunting, skinning. नेक्स्ट In the prehistoric era, script was not developed. The human ancestors started migrated from Africa species at Homo erectus. The human presence in India is about 1 million to 2 million years ago. The periods are often named after the material used, first site to identify, or the geographical region. The first Paleolithic tools were identified at the site of Kalvaram near Chennai by Robert Bruce in 1850. नेक्स्ट हाँ नहीं हो पीछे कुछ The period before the development of script is called the prehistoric times. It is also referred as Stone Age. Human ancestors are likely to have first evolved in Africa and later migrated to different parts of the world. Generally, the period before the invention of script is broadly divided into Stone Age, Bronze Age, or Iron Age. The period before the development of script is called the prehistoric times. The earliest human ancestor species to सेम लिखा है हाँ ऑलमोस्ट सेम हाँ आगे migrate out of the Africa was the Homo erectus. The period of the Old Stone Age, Paleolithic is called Mesolithic Age. Homo erectus is believed to have lived in India. ठीक है आप The period before development of script is known as prehistoric times. The first human ancestor species migrated out of Africa, both the Homo erectus, till the 20th century. ठीक है The earliest stage in history is called Stone Age or Paleolithic. It is divided into three parts: lower, middle, and upper Paleolithic culture. ठीक है The prehistoric India, the period before. कॉपी में नहीं लिखा नहीं मार्क नहीं करने से चलेगा ना लिखना पड़ेगा और लिखने की आदत डालनी है ठीक है अभी कॉपी में लिखो इसको लिख लो जब तक ये पता है हाँ The period before the development of script is called the prehistoric times. The earliest human ancestor species to migrate out of Africa was the Homo erectus. Recent investigation have produced evidence for the presence of human ancestors in India between 1 million and 2 million years ago. The period before the invention of script is broadly divided into Stone Age, Bronze Age, and Iron Age. The classification of these cultures is done on the basis of stratigraphy, chronology, and lithic evidence. The first Paleolithic tools were identified at the state of Pallavaram near Chennai by Robert Bruce Foote in 1860. फूट है वो फूट है नहीं बोलेंगे Period before the development of script called the historic times. The earliest human ancestor migrated out of Africa was the Homo erectus. Ancient investigation have produced evidence for the presence of human ancestors in India between 1 million and 2 million years ago. The period between the invention of script is divided into Stone Age, Bronze Age, and Iron Age. Classification of this culture is on the basis of stratigraphic and chronological evidence.
ठीक है, right. The period before the development of script is called prehistoric. The earliest human ancestor species to migrate out of Africa was Homo erectus. The presence of human ancestors in India has between 2 million and 1 million years ago. Invention of script period divided into Stone Age, Bronze Age, and Iron Age. Paleolithic tools were identified at Pallavaram near Chennai by Robert Bruce in 1863. ठीक है, जो लंच टाइम होगा उस टाइम पे, लंच के बाद जो टाइम बचे उसमें लिख लेना दोनों, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी बोथ, ठीक है। और उस टाइम पे हिस्ट्री का भी सुना था, ठीक है। मैं देखूंगा उस टाइम कॉपी, मार्क नहीं करना है, लिखना है, ठीक है। चलो, हिस्ट्री में हम कौन सा पीरियड पढ़ रहे हैं अभी? कौन सा? प्री हिस्टोरिक में कौन सा? लोअर पैलियोलिथिक, ठीक है। हमने पीरियड्स को कुछ डिवाइड किया था, कैसे डिवाइड किया था हमने? हमारी हिस्ट्री में, हिस्ट्री की जब हम बात करें या फिर पीरियड्स की बात करें तो उसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज प्री हिस्ट्री, और उसके बाद क्या आया था? प्रोटो हिस्ट्री, एंड देन हिस्ट्री, ठीक है। अब इस प्री हिस्ट्री में फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं वो स्टोन एज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ये स्टोन एज 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। कौन कौन सा है? पैलियो, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। ये पैलियोलिथिक भी फिर हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दी। कौन कौन सा? लोअर, मिडल एंड अपर। अभी हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम कौन सा पीरियड पढ़ रहे हैं? लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। उस टाइम पे क्या क्या इन्वेंशंस हुए थे, क्या क्या हमें मिला, जिसके आधार पर हम उसे लोअर पैलियोलिथिक पढ़ते हैं, वो हमें तब समझ में आएगा जब हम उससे नेक्स्ट वाले पे जाएंगे, क्योंकि तब हम चेंजेस पढ़ेंगे कि चेंजेस क्या है। तो अभी सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि क्या क्या मिल रहा है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, मिडल पे जब हम जाएंगे, तब हमें चेंजेस पढ़ने हैं कि यहाँ पर क्या अवेलेबल था और यहाँ पर क्या चेंज आया। तो वो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए रिकॉग्नाइज करना कि हाँ ये लोअर पैलियोलिथिक पीरियड है और ये मिडल पैलियोलिथिक कल्चर है, ठीक है। दोनों में रिकॉग्नाइज करना है तो दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। तो अभी हम कौन से वाले पीरियड पे हैं? लोअर पैलियोलिथिक। कहाँ पहुंचे हुए हैं? कहाँ पे? लिथिक रूट्स पे, ठीक है। इसमें जो आपने समरी बताई, उस समरी के आधार पर जो सबसे फर्स्ट साइट इंडिया में जो रिकॉग्नाइज की गई थी, जिसने ढूंढा था, कौन था? उसका नाम रॉबर्ट फुट। 1863 में कौन सी साइट थी? पल्लवरम। पल्लवरम नियर चेन्नई। क्या मिला था? ठीक है, हैंड एक्स उसे मिला था। और ये कौन से पीरियड से बिलोंग करता है? लोअर पैलियोलिथिक पीरियड से, ठीक है। तो ये अभी तक जो हमने पढ़ा है, ठीक है, उसकी मोटी मोटी समरी देखें। और इसी में हमने पढ़ा था कि हम पैलियोलिथिक के बाद ये सीक्वेंस हमने पढ़ा है, ये भी आपकी समरी में आ जाएगा, ठीक है। ये भी वही पढ़ा हुआ है। तो मोटा मोटा हमने अभी तक ये पढ़ा है, ठीक है। हम पढ़ेंगे अभी उससे आगे। ये हमने पढ़ लिया था, ये जो हैंड एक्स जो मिले थे रॉबर्ट ब्रूस फुट को, ठीक है, ये हम पढ़ रहे थे या पढ़ चुके, ठीक है। ये टूल्स थे, चॉपर्स, हैंड एक्स और क्लीवर्स। डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। ये नहीं हुआ तो यहाँ ये पूरा हुआ था, ठीक है। तो अभी ये बच्चा हमारा, ठीक है। जब लिथिक टूल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हमें मिल रहे हैं मेनली क्या मिल रहे थे? हैंड एक्स टाइप में मिल रहे थे, क्लीवर्स मिल रहे थे, चॉपर्स मिल रहे थे, ठीक है। उसी के आधार पे इसको कैसे डिवाइड करेंगे वो बेसिकली इसमें है। तो इसको पढ़ेगा कौन? अभी पढ़ना था इसको,
किसका नंबर था? इसका पढ़ने का नंबर किसका था? मेरी टर्न है। किसकी? हाँ पढ़ो। The industries of Paleolithic culture are divided into the earlier, middle, and late. Equine industries, the early equine tools include polyhedrons, spheroids, hand axes, and levers and slave tools. ठीक है, यहाँ पे एक नया वर्ड आपको सुनाई देगा, एक्लियन इंडस्ट्रीज। ठीक है ना, तो ये पहले क्या है इसको भी समझेंगे हम अभी। ठीक है, तो द इंडस्ट्रीज ऑफ पैलियोलिथिक कल्चर आर डिवाइडेड इनटू अर्ली, मिडल एंड लेट एक्यूलियन इंडस्ट्रीज। ये एक्यूलियन इंडस्ट्रीज क्या हैं उसको समझने के लिए आपके यहाँ पे एक बॉक्स बना होगा बुक में। नेक्स्ट पेज करना है। उसमें दो टाइप की इंडस्ट्रीज की बात की गई है जो हमारे लोअर पैलियोलिथिक पीरियड से रिलेटेड है। तो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में टाइप ऑफ स्टोन टूल्स जो हमें मिल रहे थे उसके आधार पे हमने इन दो इंडस्ट्रीज को अलग अलग किया हुआ है। ठीक है, वन इज एक्यूलियन इंडस्ट्री एंड अनदर इज सोहानियन इंडस्ट्री। इन दो को हमने अलग अलग किया है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लिथिक टूल्स, स्टोन टूल्स जो हमें मिल रहे थे। बेसिकली अगर इसका थोड़ा सा पास जाने तो एक्यूल जो हम बेसिकली एक वर्ड सुनेंगे, ये एक साइट है जो हमें मिली थी फ्रांस में। कहाँ मिली थी? फ्रांस में। तो फ्रांस में हमें एक्यूल नाम की साइट मिली थी और वहां पर जो हमें टूल्स मिले थे दे वर बेसिकली हैंड एक्स। क्या थे? हैंड एक्स। तो जहां पर भी इस तरह के टूल्स मिल रहे हैं तो उस जगह को हमने जनरली एक्यूलियन टाइप ऑफ साइट्स के नाम से जानना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले या फिर पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी भी साइट की नेमिंग करते हैं वो तीन बेसिस पे हो सकती है। क्या क्या है? मटेरियल, रीजन, लिथिक एविडेंस। लिथिक एविडेंस ज्योग्राफिकल जो आप बता रहे हैं वो है कि फर्स्ट कहां पर मिला है। ठीक है ना, तो तीन है बेसिकली कंडीशंस जिनके आधार पर हम नाम रखते हैं। तो उनमें से ये नाम हमने किस बेसिस पे रखा है? ज्योग्राफिकल लोकेशन जहां पर फर्स्ट मिला था। तो हैंड एक्स जो फर्स्ट मिले थे वो कहां मिले थे? फ्रेंच साइट एक्यूल। तो इस आधार पर जहां जहां हैंड एक्स मिले उसको हमने एक्यूलियन साइट्स बोलना शुरू कर दिया, एक्यूलियन इंडस्ट्रीज बोलना शुरू कर दिया। इंडस्ट्रीज क्यों? क्योंकि वहां पर हैंड एक्स बनाने का काम चलता था, वहां पर मल्टीपल लोगों ने उसको बनाया था। ठीक है, तो एक्यूलियन इंडस्ट्रीज हमारे यहां पर प्री हिस्टोरिक पीरियड में थी। और किस पीरियड में थी? लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में पाई जा रही थी। उस टाइम पे जो टूल्स मिल रहे थे वो कौन से मिल रहे थे? हैंड एक्स मिल रहे थे, इसलिए हमने उसको क्या बोला? एक्यूलियन बोला। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ेंगे बेसिकली, तो उसके बाद हम उस पर जाएंगे। तो इसको पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा? आप पढ़ो। Based on research, two independent culture tradition of hand axe and double flakes industries were confirmed in India. Aquilian industries mainly had hand axe and Cleavers, हाँ। The Sohan industry is considered to have used only chopper and chopping tools. The Sohan industries get its name from the Sohan River Valley of Pakistan. These two cultural traditions are not considered distinct any longer. Recent studies argue that there was no independent Sohan tradition, as Aquilian tools are found in the Sohan industries as well. ठीक है, बैठ जाओ। तो यहां से आपको दोनों में डिफरेंस पता लगेगा। सबसे पहला है बेस्ड ऑन रिसर्च टू इंडिपेंडेंट कल्चरल ट्रेडिशंस। किस किस के? वन इज ऑफ हैंड एक्स एंड अनदर इज ऑफ पेबल फ्लेक्स। ठीक है ना, एक जहां पर हैंड एक्स पाए जा रहे हैं और एक जहां पर जो पेबल्स हैं, राउंडेड स्टोन्स हैं, उनके फ्लेक्स उतार के हमने टूल्स बनाए हैं। जैसे ये हमारे सोहानियन
इंडस्ट्री के वाले जो टूल्स हैं वो ये हैं। यहाँ पर ये पेबल्स हैं, राउंडेड स्टोन है, इनको फ्लेकिंग की गई है, इनको परत उतार करके इनको छीला गया है, तो उसके बाद इनको टूल्स बनाया गया है। तो ये पेबल फ्लेक से बनाए गए हैं। तो ये अलग इंडस्ट्री को शो करेंगे और उस इंडस्ट्री का नाम हमने क्या रखा, सोहानियन। तो इंडिया में ये दोनों टाइप की इंडस्ट्रीज पाई गई, हैंड एक्स भी पाया गया और पेबल फ्लेक भी पाया गया। हैंड एक्स वाली को हमने क्या बोला, एक्यूलियन, और इसको हमने क्या बोला, सोहानियन। वर कंफर्म्ड इन इंडिया। एक्यूलियन इंडस्ट्री मेनली हैड हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स। समझ में आ गया ना। द सोहन इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड टू हैव यूज्ड ओनली चॉपर एंड चॉपिंग टूल्स। तो इनका यूज किस चीज के लिए हो रहा है, फॉर चॉपिंग एंड चॉपर्स के लिए, ठीक है ना। फॉर चॉपिंग हम इसके लिए यूज कर रहे हैं इसको। तो ये जो टूल्स हैं बेसिकली चॉपर्स आएंगे, ठीक है। दिस सोहन इंडस्ट्री गेट्स इट्स नेम फ्रॉम सोहन रिवर वैली ऑफ पाकिस्तान। जैसे एक्यूलियन का तो मैंने बता दिया, वो फ्रेंच साइट मिली थी, ऐसे ये सोहन इंडस्ट्री कहां से मिली है, पाकिस्तान में सोहन वैली है, ठीक है। वहां पर ये इस टाइप के टूल्स मिले, तो वहां से जब फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुए तो वहीं से जहां पर भी ये टूल मिलेंगे उसका नाम सोहन इंडस्ट्री के नाम से रखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये वहां से नाम पड़ा है पाकिस्तान से, और एक्यूलियन फ्रांस से नाम पड़ा है। These two cultural traditions are not considered distinct any longer. आज के टाइम पे अगर हम देखें तो हिस्ट्री में जनरली इन दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ा जाता है। They are not studied distinctly. सेपरेटली नहीं पढ़ेंगे हम उसे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, उसका रीजन आगे है। Recent studies argue that there was no independent Sohan tradition as Acheulean tools are found in Sohan industry as well. क्योंकि जब रिसेंट स्टडी हुई तो हमने देखा कि दोनों टूल्स एक दूसरी जगह पे पाए जा रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कहीं पे एक्यूलियन इंडस्ट्री है तो वहां पर सिर्फ हैंड एक्स मिल रहे हैं, वहां पर हमें सोहन इंडस्ट्री वाले टूल्स भी मिले। तो इसीलिए अब हम कहेंगे कि यहाँ पर सिर्फ एक्यूलियन इंडस्ट्री नहीं है, दोनों का ही प्रेजेंस था, तो दोनों को अलग अलग करके नहीं पढ़ सकते, दोनों साइमल्टेनियसली एक जगह पे एग्जिस्ट कर रही थी। क्लियर है, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। तो एक्यूलियन कई बार वर्ड आएगा अभी आगे, तो इसलिए इसका क्लियर होना पहले जरूरी था। तो एक्यूलियन इज बेसिकली रिलेटेड टू हैंड एक्स, जहां पर हैंड एक्स टाइप के जो टूल्स बन रहे थे वो एक्यूलियन है, ठीक है। और ये हमारी हिस्ट्री में लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में ही जनरली दिखाई देगा, उसके बाद ये बहुत कम हो जाएंगे। तो एक्यूलियन इंडस्ट्री इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। क्लियर है। तो इंडस्ट्रीज ऑफ पैलियोलिथिक कल्चर आर डिवाइडेड इनटू अर्ली, मिडल एंड लेट एक्यूलियन इंडस्ट्रीज। तो हमारा जो पैलियोलिथिक कल्चर है उसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, अर्ली, मिडल और लेट एक्यूलियन इंडस्ट्रीज। यानी कि जो हैंड एक्स बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज थी तो उनको हमने 3 हिस्से में बांटा। जो अर्ली टाइम पे कैसे बन रहे थे, फिर मिडल में और लेट में। उनमें क्या आएगा, साइज में डिफरेंस आ जाएगा, उनकी सफाई में डिफरेंस आ जाएगा कि कितनी सफाई से वो फ्लेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। इस हिसाब से हम उसको डिवाइड करेंगे। जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीजें समझ में आएंगी। The early Acheulean tools include polyhedrons, spheroids, hand axe, cleavers and flake tools. अगर हम अर्ली की बात करें तो अर्ली में बहुत ज्यादा सफाई से ये, अगर हम कहें पॉलीहेड्रॉन्स क्या होते हैं, जिनके फेस एक से ज्यादा हो, पॉलीहेड्रॉन्स है। जनरली हम इससे 6 से ज्यादा वाले फेस जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम पॉलीहेड्रॉन बोल देते हैं, ठीक है ना। 6 वाले को हेक्सागन बोलते हैं, उसके आगे सेप्टागन, ऑक्टागन ये आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली पॉलीहेड्रॉन्स हैं। तो इस टाइप के शेप मिलते थे उस टाइम पे, ठीक है। ये इस टाइप से आपको दिखाई देगा, मल्टीफेसेटेड, जिनके बहुत सारे फेस होंगे, ठीक है। देन स्फेरॉइड्स मिलेंगे, थोड़े से स्फेयर टाइप में मिलेंगे, इसका भी आपको स्फेरिकल थोड़ा सा आपको दिख जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा गोल टाइप के मिलेंगे। देन उसके बाद हैंड एक्सेस मिलेंगे, क्लीवर्स मिलेंगे, फ्लेक टूल्स मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये आपके अर्ली कल्चर में दिखाई देंगे, ठीक है। अब इसकी लोकेशन की बात कर रहे हैं। जो एक्यूलियन ट्रेडिशन है इसको पढ़ना था पहले, हाँ पढ़ो। Acheulean tradition is absent in the Western Ghats, coastal areas and northeastern India. Heavy rainfall is attributed to its absence. Uncongenial conditions and lack of raw materials might have prevented the occupation of these areas. Perhaps there was no necessity for the prehistoric people to move into these areas.
These sites are found more in central India and in southeastern part of India near Chennai. These areas receive high rainfall and therefore endowed with thick green cover and rich resources. ठीक है, अभी जब एक बहुत बेसिक सी चीज जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, एक्यूलियन इंडस्ट्रीज इज सिंक्रोनस विद दी लोअर पैलियोलिथिक साइट्स। तो लोअर पैलियोलिथिक साइट्स को यहाँ पर ये एक्यूलियन इंडस्ट्रीज बोल रहा है, एक्यूलियन साइट्स बोल रहा है, ठीक है। तो दोनों को सिमिलरली यहाँ पर यूज करने की कोशिश की जा रही है। तो लोअर पैलियोलिथिक साइट्स कहाँ कहाँ अवेलेबल थी, या फिर लोअर पैलियोलिथिक साइट्स में हैंड एक्स कहाँ कहाँ मिल रहे थे, वो डिपेंड करेगा वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस पे, ठीक है। वही लोकेशंस यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि कहाँ कहाँ वो अवेलेबल थे और कहाँ कहाँ नहीं थे, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट इज एक्यूलियन ट्रेडिशन इज एब्सेंट इन वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट कहां पर है इंडिया में? यहां से शुरू हो जाएंगे लगभग और यहां से लेके लास्ट तक चलेंगे। यहां पर वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है। तो यहां पर एब्सेंट है, यहां पर हमें एक्यूलियन ट्रेडिशन नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट इज कोस्टल एरियाज, इसके साथ इस एरिया में नहीं मिलेंगे, इस एरिया में नहीं, ये एक्सेप्शन है, इस एरिया में नहीं मिलेंगे, ठीक है। कोस्टल एरियाज में भी एब्सेंट मिलेगा एक्यूलियन ट्रेडिशन। क्यों एब्सेंट है वो उसके बाद उसका रीजन भी दिया हुआ है, ठीक है। देन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, इससे इधर का एरिया इधर भी एब्सेंट है, इधर भी नहीं मिलेगा। यहां एब्सेंट होने का रीजन क्या है वो आगे दिया हुआ है। हैवी रेनफॉल इज एट्रीब्यूटेड टू इट्स एब्सेंस। इन एरियाज में रेनफॉल बहुत हैवी है, तो रेनफॉल हैवी होने से ये क्यों एब्सेंट हुआ वो भी सोचना पड़ेगा कि रेनफॉल हैवी है तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है, तो ये एब्सेंट क्यों है। सिर्फ रेनफॉल हैवी हो जाने से ये कल्चर एब्सेंट हो जाना, ये दोनों बातें मैच नहीं कर रही, तो कुछ और होना चाहिए। तो वो क्या है? द अनकंजेनियल कंडीशंस। अनकंजेनियल होता है अनफ्रेंडली, दैट इज नॉट फ्रेंडली। अनकंजेनियल का मतलब होता है दैट इज नॉट फ्रेंडली, कंजेनियल इज फ्रेंडली। कंजेनियल का मीनिंग होता है फ्रेंडली, अनकंजेनियल इज नॉट फ्रेंडली। तो नॉट फ्रेंडली कंडीशंस, वहां की कंडीशंस ऐसी नहीं थी जो ह्यूमन सेटलमेंट अलाउ कर सकें। और जब ह्यूमन ही नहीं रहेंगे तो वहां पर स्टोन टूल्स मिलेंगे कैसे? तो वहां का जो एरिया था, वहां का जो ज्योग्राफी थी, वो अलाउ नहीं कर रही थी ह्यूमंस को वहां सेटल होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोस्टल एरियाज हो गए या फिर आपका वेस्टर्न घाट हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया हो गया, यहाँ पे रेनफॉल इतनी ज्यादा थी, ना तो वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रही थी, ना उनके रहने दे रही थी वहां पर। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस भी उनके लिए एडवर्स हो रही थी उस टाइम पे, तो इसीलिए यहाँ पर ये इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाई, ठीक है। तो अनकंजेनियल कंडीशंस एंड लैक ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था वहां पर, स्टोन उस टाइप के अवेलेबल नहीं थे जिससे वो बनाए जा सके टूल्स, might have prevented the occupation of these areas। इन रीजन की वजह से इन्होंने प्रिवेंट किया इन एरियाज में ऑक्यूपेशन, इन एरियाज में लोगों का रहना, इसीलिए यहां पर नहीं रह पाए लोग। Perhaps there was no necessity for the prehistoric people to move into these areas। आज के टाइम तो जहां देखो वहां सेटलमेंट है, क्यों? नेसेसिटी है, लैंड नहीं है, कहीं तो जाना पड़ेगा ढूंढने के लिए। आज के टाइम पे नेसेसिटी है, तो उस टाइम पे ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं दिखाई देती, ऐसी कोई जरूरत नहीं दिखाई देती कि लोगों को जबरदस्ती यहां पर जाकर बसना पड़े इन एरियाज में जहां रहना डिफिकल्ट हो। आज के टाइम पे नेसेसिटी है कि लैंड की इतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है, तो नेसेसिटी हो गई है, चाहे कंडीशन कैसी भी हो रहना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम पे उनको ऐसा कोई नेसेसिटी, ऐसा कोई रीजन नहीं दिखाई दे रहा था जिनकी वजह से वो वहां जाएं और वहां पर वो टूल्स डेवलप हो। इसीलिए इन जगहों पे वो टूल्स और वो इंडस्ट्रीज एब्सेंट है, ठीक है, ड्यूरिंग लोअर पैलियोलिथिक टाइम्स, ठीक है। These sites are found more in central India। तो ऐसी साइट पाई कहां जाएंगी? एक्विलियन इंडस्ट्रीज मेनली इन सेंट्रल इंडिया एंड इन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया नियर चेन्नई। तो मेनली आप देखोगे तो यहां पर आपको ये दिखाई देंगी, यहां दिखाई देंगी, यहां दिखाई देंगी और चेन्नई के आसपास दिखाई देंगी। तो ये मेनली साइट्स आपको दिखाई देंगी एक्विलियन इंडस्ट्रीज की, ठीक है। क्यों दिखाई देंगी यहाँ पर? यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है? रॉ मटेरियल मिलेगा और एनवायरमेंटल कंडीशंस इनको सपोर्ट करेंगी यहाँ रहने के लिए। रेनफॉल यहाँ भी है, यहाँ हैवी नहीं है, उसकी जगह हम यहाँ पढ़ेंगे हाई रेनफॉल,
ठीक है, तो यहाँ पर these areas receive high rainfall and are therefore endowed with thick green cover and rich resources. हाई रेनफॉल होने की वजह से, लैक ऑफ रेनफॉल होने की वजह से भी वहां लोग नहीं रह पाएंगे। जहां रेनफॉल होगी नहीं, जहां बारिश ही नहीं होगी, वहां भी नहीं रह पाएंगे, और जहां बहुत ज्यादा होगी वहां भी नहीं रह पाएंगे। तो यहां पर रेनफॉल है और वो सफिशिएंट है कि वहां पर ग्रीन कवर हो सके, यानी अपने आप कुछ पेड़ पौधे उग सके, क्योंकि उस टाइम के लोग क्या कर रहे थे, जो दिख रहा था उसी को तोड़ के खा लिया, जो जानवर दिखा उसे मार के खा लिया। तो यहां पर जानवर भी उसको ढूंढते हुए आएंगे, यहां पर उनको प्लांट वगैरह मिल जाएंगे, फ्रूट्स वगैरह मिल जाएंगे, और यहां पर उन्हें रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे, रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा। तो इसीलिए इन एरियाज में जनरली लोग जाकर सेटल हुए। ये भी देखो नदियों के किनारे ज्यादातर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो इनके सेटलमेंट के पीछे रीजन था, ज्योग्राफिकल रीजन था। क्लियर है, समझ में आया तक? हाँ, कहां पर है? एंडोड मतलब होता है कि उसको हिंदी में एग्जैक्टली क्या बताऊं मीनिंग। जैसे मैं कहूंगा कि ही इज एंडोड विद दीज क्वालिटीज, यानी उसके साथ, उनके साथ वो प्रेजेंट है, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल कहूं कि किसी एक पर्सन के बारे में कहूं तो ही इज एंडोड विद दीज क्वालिटीज सो दैट ही कैन प्ले वेरी वेल, ठीक है ना। वो वहां पर एंडोड का मीनिंग आएगा बेसिकली। तो उसमें हम कहेंगे कि इनहेरेंट कह सकते हैं, बेसिकली इनहेरेंट कह सकते हैं, प्रेजेंट कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, चलो ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, अब हम पहुंचेंगे डिस्ट्रीब्यूशन पे कि ये लोअर पैलियोलिथिक साइट्स इंडिया में कहां कहां पाई जा रही हैं। लोअर पैलियोलिथिक साइट्स हमें देखनी है कि इंडिया में कहां कहां थी। डिस्ट्रीब्यूशन का रीजन हम समझ चुके हैं। रीजन क्या था? मतलब ज्योग्राफिकल कंडीशंस फेवरेबल होनी चाहिए, रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, तब वहां जाकर लोग रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। एडवर्स कंडीशंस में लोग नहीं रहने वाले, ठीक है। मेनली दो कंडीशन आपको पता लगी यहाँ पर, ठीक है। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन उसके हिसाब से अगर हम देखें किस किस एरियाज में थे तो हमें पता लगेगा। सबसे पहले लोअर पैलियोलिथिक टूल्स आर फाउंड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, ज्यादातर पार्ट्स में है, एक्सेप्ट इन फ्यू रीजन्स, जैसे गंगेस वैली, जो हमारा रिवर गंगा का जो एरिया है वहां पर, सदर्न तमिलनाडु, तमिलनाडु में चेन्नई के नीचे का हिस्सा सदर्न तमिलनाडु हो गया। देन उसके बाद हिली एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट्स, यहां पर एब्सेंट है, यहां पर अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। तो कहां कहां है? इसके अलावा ज्यादातर जो इंडिया का पार्ट है, हर जगह पे हमें लोअर पैलियोलिथिक साइट्स मिल जाएंगी। क्लियर है? कहां कहां मिलेंगी मैप में अभी देखेंगे। उसके बाद आपका अथिरमपक्कम, ये कहां पर है? नियर चेन्नई है ये भी, ठीक है। अभी रॉबर्ट ब्रूस फूट हमने नाम सुना, उसी के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, उन्हें यहां पे भी कुछ मिला था, ठीक है। जब हम मिडल पैलियोलिथिक में मूव करेंगे तब हमें पता लगेगा कि मिडल पैलियोलिथिक में भी यहाँ पे बहुत कुछ मिला है, ठीक है। तो अब हम इस साइट के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। देन उसके बाद पल्लवरम, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, चेन्नई के पास में, जहां से हमें हैंडेक्स मिले थे, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मिले थे वहां पर 1863 में। फिर उसके बाद गुदियाम मिलेगा, गुदियाम बेसिकली केव्स के लिए जाना जाएगा। यहाँ पर रॉक शेल्टर्स दिखाई देंगे, यहाँ पर लोगों को बारिश में किसी छुपने के लिए जगह मिल जाएगी, तो इसलिए जाना जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ बसेंगे जाके। फिर उसके बाद हुंगसी वैली दिखाई देगी, ये कर्नाटका में दिखाई देगी। देन इसामपुर, ये भी कर्नाटका में होगा। देन उसके बाद भीमबेटका दिखाई देगा, भीमबेटका आपको हर जगह दिखाई देगा। आप यहाँ से शुरू कर रहे हो और हड़प्पन सिविलाइजेशन के लास्ट तक आपको हर जगह पे भीमबेटका दिखाई देने वाला है, ठीक है। ये वो साइट थी जो हर मतलब एज में, हर पीरियड में अवेलेबल थी और उस टाइम पे सपोर्ट कर रही थी। क्यों? यहाँ पे रॉक शेल्टर्स थे, यहाँ पे केव्स थी, तो लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, तो बहुत इजी जगह इन्हें यहाँ मिल जाती थी। और केव पेंटिंग्स के लिए भीमबेटका बहुत मशहूर है। किसके लिए है? केव पेंटिंग्स के लिए। तो भीमबेटका के सामने आपको केव पेंटिंग्स लिख लेना है। इस साइट में बहुत सारी पेंटिंग्स मिली है। यहां से पेंटिंग्स को देख करके हम उस पीरियड के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है। तो
भीमबेटका में जो केव्स हैं उसकी छत के ऊपर बहुत सारी पेंटिंग की है, दीवारों पे बहुत सारी पेंटिंग पुराने टाइम की हमें मिलती है। तो भीमबेटका इज नोन फॉर केव पेंटिंग्स। और कहाँ पर है ये भीमबेटका? मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर हमारे लोअर पैलियोलिथिक साइट्स में भी भीमबेटका का नाम आएगा, मिडल में भी आएगा, नियोलिथिक में भी आएगा, मिजोलिथिक में भी आएगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी आएगा, हर जगह पे भीमबेटका आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, तो इसको ध्यान रखना। आर सम इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट्स वेयर आर्क्यूलियन टूल्स आर फाउंड। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहां पर हमें आर्क्यूलियन टूल्स मिले हैं, और आर्क्यूलियन इज रिलेटेड टू बेसिकली लोअर पैलियोलिथिक। तो हमारे यहाँ मैप देखेंगे तो आपको यहाँ पर भीमबेटका दिखाई देगा। ये देख रहे हो, यहाँ पे अलग अलग सिंबल सब मिक्स कर रखे हैं। यहाँ पर आपको सर्कल भी दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल भी दिखाई दे रहा है, देन उसके बाद स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है, देन उसके बाद ये मिक्स भी दिखाई दे रहा है, सब है यहाँ पे। तो भीमबेटका हर टाइम अवेलेबल थी। ठीक है, देन उसके बाद आपका ये आ गया अथरमपक्कम। ठीक है, और यहाँ पर इसी के नजदीक आपको बुधियाम भी मिल जाएगा, ये रहा, यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, और यहीं आपको नजदीक से यहाँ पर पल्लवरम भी मिलेगा। ठीक है, तो ये साइट्स नियर टू चेन्नई है सारी। ठीक है, यहाँ पर लोअर पैलियोलिथिक की अगर हम बात करें तो सब सर्कल से दिखाई गई है। तो सर्कल जहां जहां दिखाई देगा आपको दिख जाएगा, यहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा, इस एरिया में दिखाई देगा। ठीक है, देन भीमबेटका मैंने दिखाई दिया आपको कहाँ है। जो हुंगसी वैली है वो आपको यहाँ दिखाई देगी, यहाँ पे होनी चाहिए। ये हुंगसी है ना, हाँ हुंगसी वैली। ठीक है ना, हुंगसी वैली को भी हम कई बार पढ़ेंगे। ठीक है, हुंगसी वैली में कई बार वो जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें राइस नहीं फायर का कहाँ एविडेंस मिले, तो हुंगसी वैली से वो फायर एविडेंस हमें दिखाई देंगे बाद में। ठीक है, बाद में पढ़ेंगे हुंगसी वैली के बारे में जब आएगा इसके बारे में। ठीक है, फायर एविडेंस हमें दिखाई देंगे, लेकिन इस पीरियड के नहीं है, वो किसी और पीरियड के। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमको यहाँ से दिख जाएंगे। और जनरली देखोगे तो ये जो लोअर पैलियोलिथिक साइट हैं ये आपको एब्सेंट दिखाई देंगी इस एरिया से, इस एरिया से और इस एरिया से। ठीक है, ज्यादातर आपके सेंट्रल इंडिया में हैं और चेन्नई के आसपास हैं। ठीक है, तो बाकी जगह से एब्सेंट है, क्यों है उसका रीजन हम जान चुके हैं। क्लियर है? चलें आगे। चलो अब क्रोनोलॉजी की बात करेंगे। हालांकि आपकी बुक ने सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, लेकिन क्रोनोलॉजी में आप ये पीरियड लिख लेना जो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब क्रोनोलॉजी की बात करें तो अभी लोअर पैलियोलिथिक की, पैलियोलिथिक को भी अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर। तो लोअर पैलियोलिथिक का जो आपकी बुक बता रही है दैट इज रिसेंट सर्चेज। ये पढ़ेगा कौन? 2 लाइन है, कौन पढ़ेगा? सिंगल लाइन है, पढ़ दो, आप ही पढ़ दो, पढ़ दो, पढ़ दो। Recent research places the beginning of Lower Paleolithic around 2 million years ago. This culture continued up to 16,000 years ago. ठीक है ना, तो कब से शुरू हो रहा है? 2 मिलियन ईयर अगो, यानी लगभग 20 लाख साल पहले। जब हमें क्या मिला था यहाँ पर? होमो इरेक्टस। कौन मिला था? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस कौन है? ह्यूमन एंसेस्टर, होमो सेपियंस के एंसेस्टर। ठीक है, तो उनका यहाँ पर हमें मिलता है, तो इसीलिए हम लगभग 2 मिलियन ईयर से लेकर के अराउंड 60,000 ईयर्स अगो तक इसको मानते हैं। ठीक है, और वहीं पर अगर हम ओवरऑल पैलियोलिथिक पीरियड की बात करें तो ओवरऑल पैलियोलिथिक पीरियड विल गो फ्रॉम अराउंड 20 लाख, इसको 5 लाख करके 20 लाख भी कर सकते हो। ठीक है, पुराने टाइम से लेके अराउंड 10,000 BCE तक हमारा पैलियोलिथिक चलेगा। ठीक है, देन उसके बाद 10,000 BCE से अराउंड 6,000 BCE तक हमारा मेसोलिथिक आ जाएगा, और फिर उसके बाद 6,000 से लेके आपका 1000 तक बीच में और भी बहुत सारे पीरियड आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्राइकली बिल्कुल अलग कर देंगे हम इसको, इसी बीच में हम चालकोलिथिक पीरियड भी पढ़ेंगे, आयरन एज भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका नियोलिथिक पीरियड विल गो फ्रॉम 6000 टू 1000 BC। तो आपको एक जनरल सा आपको ये एक आइडिया होना चाहिए कि हम अभी किस पीरियड को पढ़ रहे हैं। तो किस पीरियड को पढ़ रहे हैं? पैलियोलिथिक है, दैट इज स्प्रेडिंग अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो टू कितना? 1 मिलियन है।
10,000 BC, 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 10,000 BCE तक सिर्फ पैलियोलिथिक ही चलेगा। ठीक है, तो सबसे लंबा पीरियड है। और उसमें लोअर पैलियोलिथिक की बात करें तो अराउंड 60,000 ईयर्स अगो तक ये रहेगा। ठीक है, शुरू से लेके अराउंड 60,000 ईयर्स अगो, आज से, बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, आप लोगों को डाउट नहीं आते क्या पढ़ते हुए? डाउट्स कोई पूछता ही नहीं। डाउट्स नहीं पूछने के कारण दो रीजन हो सकते हैं, एक तो पढ़ नहीं रहे हो, और दूसरा रीजन है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। सर ने आपका बता दिया था? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, लिख लिया? चलो चलो, नहीं लिखा? कौन बचा है? ठीक है, हो गया? ठीक है, अभी हम बात करेंगे होमिनिन एंड एनिमल फॉसिल्स की इसी दौरान, पैलियोलिथिक पीरियड में। तो बेसिकली होमिनिन बता देता हूँ। बेसिकली क्या है? होमिनिन तो नहीं, होमिनिनी जिसे हम बोलते हैं, वो हमारे होमो सेपियंस के एंसेस्टर्स हैं। ठीक है ना, ये जेनस है एक, जहां पर यहां से शुरू हो जाएगा, ये होमो वर्ड जहां से शुरू हो रहा है, ये सब एक ही कैटेगरी में है। वो क्या है? होमोनिनी। ठीक है, तो उनमें से जो हमें फॉसिल्स मिले हैं, तो उसके बारे में होमोनिनी एंड एनिमल फॉसिल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि इस टाइम पे जब हम प्री हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, जब हम लोअर पैलियोलिथिक पीरियड की बात कर रहे हैं, तो हमें किस किस के फॉसिल्स मिले हैं और उससे हमें पता क्या चलता है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे कि उस टाइम पे मिला क्या गया। स्टोन टूल्स तो हमने देख लिए क्या मिले, तो उससे हमें दो तरह की इंडस्ट्रीज पता लगी, एक तो एक्विलियन और सोहेनियन, जो आज के टाइम पे कहेंगे कि अलग अलग नहीं है, दोनों सेम ही है लगभग, क्योंकि एक दूसरे टूल्स सेम जगह पे मिले हैं। आपको वहीं पर चॉपर भी मिला और वहीं पर हैंड एक्स भी मिला है। ठीक है, अभी हम फॉसिल्स की बात करेंगे कि फॉसिल्स क्या होता था? रिमेन्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। प्लांट इज ऑल्सो लिविंग बीइंग। ठीक है ना, प्लांट और एनिमल के जो रिमेन्स हैं उन्हें हम फॉसिल्स के नाम से जानते हैं। तो उनमें से किस किस के फॉसिल्स मिले हैं हमें? बेसिकली हमें दो के देखने हैं, एक तो होमिनिन्स के और एनिमल्स के देखने। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ो, आप पढ़ो। Like Africa, evidence of hominin, immediate ancestor of Homo sapiens fossil is rare in India. There is a report of fossil fragment discovered by Robert Bruce Tutti from Athirampakam. Its rare abodes are not known now. The only well-known hominin fossil of India was found at Nora near Hoshangabad in Madhya Pradesh. The cranium is named Narmada human. It is considered to represent the Arctic Homo sapiens. It is the only existing fossil find of human ancestors in India. ठीक है, बैठ जाओ। मेनली इसमें ह्यूमन एंसेस्टर की बात की गई है कि कौन पाए गए थे, जिससे हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पर होमो इरेक्टस थे, जो हमने बोला कि अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो, एग्जैक्टली बताऊं तो 1.8 मिलियन ईयर्स अगो बोलते हैं उसको। ठीक है, तो लेकिन हम अप्रॉक्स चलते हैं क्योंकि इतने लंबे टाइम में 0.2 का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 2 मिलियन ईयर्स अगो जो हमारे यहाँ इंडिया में मिले, कौन मिले थे? होमो इरेक्टस मिले थे। ठीक है, तो उन्हीं के फॉसिल्स की बात करें कि कहाँ मिले थे वो। ठीक है, उसको हमने एक नाम दिया होमोनिन। क्या नाम दिया? किस लिए दिया? क्योंकि वो एक ही जेनस के, एक ही जीनस के। ठीक है ना, तो वो इन्हीं में से किसी का मिलेगा, तो वो बाद में हमने पता लगाया कि दैट वाज होमो इरेक्टस। ठीक है, तो होमिनी जो हमें मिले हैं, कौन से मिले हैं वो हम पढ़ लेंगे बेसिकली।
Unlike Africa, evidence of hominin fossils is rare in India. अफ्रीका में मिलते हैं, अफ्रीका में होमो सेपियंस के एंसेस्टर्स मिल जाएंगे आपको, अफ्रीका में आपको इन सब के मिलेंगे। इसीलिए हमने एक चीज पता लगाई कि अफ्रीका में सबसे पहले थे और वहीं पे हर तरह के लोग रहते थे, और धीरे धीरे जब ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ, हम इस स्टेज तक आए तो इसने हर जगह पे स्प्रेड होना शुरू किया, पूरे वर्ल्ड में फैलना शुरू किया, इधर उधर जाना शुरू किया। और इसीलिए हम मानते हैं कि जो ह्यूमन आए हैं वो कहीं ना कहीं अफ्रीका से निकले हुए सारे। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर लिखा है अनलाइक अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका में तो सबके मिले हैं, बाकी जगह पे कुछ के ही मिलते हैं। तो इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि अफ्रीका में सबसे पहले रहे होंगे और वहीं से हर जगह पे स्प्रेड आउट हुए हैं। क्लियर है? तो अनलाइक अफ्रीका, एविडेंस ऑफ होमिनिन फॉसिल्स इज रेयर इन इंडिया। जैसे अफ्रीका में है उस तरीके से नहीं मिलते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत रेयरली ही किसी का फॉसिल मिलता है, बहुत कम ही किसी का फॉसिल मिलता है। देयर इज अ रिपोर्ट ऑफ अ फॉसिल फ्रेगमेंट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्रूस फुट। अब कहाँ मिला इसे? फ्रॉम अथिरमपक्कम। अथिरमपक्कम में फिर से एक एविडेंस मिला है। वो क्या है? बहुत छोटा सा फ्रेगमेंट है, बहुत छोटा सा पीस है। फ्रेगमेंट इज पीस, फ्रेगमेंट इज पीस। ठीक है ना? तो देयर इज अ रिपोर्ट ऑफ फॉसिल फ्रेगमेंट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्रूस फुट फ्रॉम अथिरमपक्कम, कि उसे मिला था। एक रिपोर्ट है, ये सिर्फ रिपोर्ट है, क्योंकि उसके आगे लिखा है इट्स वेयर अबाउट्स आर नॉट नोन नाउ। आज नहीं पता वो कहाँ है जो उसको फ्रेगमेंट मिला था। वेयर अबाउट्स मतलब उसकी लोकेशन, वेयर अबाउट्स इज लोकेशन। आज नहीं पता जो फ्रेगमेंट रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाया था वो कहाँ है, उसकी लोकेशन नहीं पता, लेकिन एक रिपोर्ट हमें बताती है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट को ऐसा कुछ मिला था। ठीक है ना? रिपोर्ट बता रही है कि ऐसा कुछ मिला था, लेकिन आज नहीं पता उसकी लोकेशन कहां पर है उस फ्रेगमेंट की। द ओनली वेल नोन होमिनिन फॉसिल ऑफ इंडिया वाज फाउंड एट हाथनोरा नियर होशंगाबाद। कहां पर? इन दी मध्य प्रदेश, नर्मदा वैली के आसपास मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद में, हाथनोरा में जो फॉसिल मिला है वो इंडिया में ओनली नोन एविडेंस है हमारे होमिनिन फॉसिल्स का। उससे पहले का ये रिपोर्ट है कि इसको मिला था, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, उसका वेयर अबाउट्स हमें नहीं पता, उसकी लोकेशन नहीं पता कि क्या मिला था, किस पीरियड का था, कुछ नहीं पता। जो नोन है वो कहाँ का है? हाथनोरा का है। ये कहाँ पर है? नर्मदा वैली में। कहाँ पर? होशंगाबाद में, मध्य प्रदेश में। तो इसके बारे में तो हम जानते हैं, और ये कौन था उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको जब हमने स्टडी किया द क्रेनियम। क्रेनियम का मतलब बताओ? स्कल। क्रेनियम इज स्कल। द क्रेनियम, यहां से क्या मिला है? होशंगाबाद से क्रेनियम मिला है, स्कल मिला है, ह्यूमन स्कल मिला है। द क्रेनियम इज नेम्ड एज नर्मदा ह्यूमन। ठीक है ना? पहले इसका नाम रखा हुआ था नर्मदा मैन। जब ये मिला था तब हमने इसका नाम रखा था नर्मदा मैन, लेकिन बाद में जब स्टडीज की तो ये पता लगा कि ये तो गर्ल भी हो सकती है, वुमेन भी हो सकता है, तो इसीलिए इसका नाम चेंज करके हमने बाद में नर्मदा ह्यूमन किया था। ठीक है ना? तो पहले इसको हम नर्मदा मैन के नाम से जानते थे। 1982 में शायद ये मिला है, 1982। हाँ, स्टडीज से बस अभी अंदाजा है कि मतलब ज्यादा चांसेस है कि ये वुमेन का स्कल है। ठीक है ना? हाँ, ज्यादा चांसेस हैं कि विमेन का स्कल है। एग्जैक्टली नहीं बता रहे हैं, इसीलिए इसको हम ह्यूमन बोल रहे हैं। ठीक है ना? तो हम क्या बोल रहे हैं अब इसे? नर्मदा ह्यूमन। तो इस स्कल का नाम हमने क्या रखा हुआ अभी? क्यों? लोकेशन, नाम से। 3 कंडीशन है, तो अब किस नाम से बोल रहा हमने? लोकेशन से। तो नर्मदा ह्यूमन हमने इसको रखा। ठीक है? तो ये नर्मदा में, नर्मदा वैली में, होशंगाबाद के पास हाथनोरा में हमें एक ह्यूमन स्कल मिला है, उसको हमने स्टडी किया है, उसका नाम है नर्मदा ह्यूमन। इट इज कंसिडर्ड टू रिप्रेजेंट आर्केक होमो सेपियंस। आर्केक मतलब एंशियंट, आर्केक मतलब एंशियंट। होमो सेपियंस का एंशियंट वर्जन है, उसका पुराना वर्जन है। तो होमो सेपियंस का पुराना वर्जन क्या हो सकता है? जो हमने स्टडी किया अभी कि इंडिया में होमो इरेक्टस पाया है, तो दैट इज होमो इरेक्टस। ये इसकी बात करना चाह रहे हैं। ठीक है ना? तो उसका पुराना वर्जन है, आर्केक होमो सेपियंस है। इट इज द ओनली एग्जिस्टिंग फॉसिल फाउंड ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर्स इन इंडिया।
इंडिया में बात करें, होमो सेपियंस से पुराने किसी एंसेस्टर की बात करें, तो इट इज द ओनली एग्जिस्टिंग फॉसिल दैट इज फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया में, जैसे अफ्रीका में तो सबके मिल गए, लेकिन इंडिया में होमो सेपियंस के अलावा सिर्फ हमें होमो इरेक्टस ही मिला है। इसीलिए हमने उसको स्टडी को हमारा 2 मिलियन ईयर्स एगो तक लेके चले गए। ठीक है। और लोअर पैलियोलिथिक पीरियड इज नोन फॉर ओनली होमो इरेक्टस। यहां पर होमो इरेक्टस ही मिलेंगे। अभी होमो सेपियंस हमारे इंडिया में नहीं आए, अभी होमो सेपियंस का कोई एविडेंस नहीं मिला है। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में जो फॉसिल मिले हैं वो किस ह्यूमन के मिले हैं? होमो इरेक्टस के मिले हैं। ठीक है। तो जब भी लोअर पैलियोलिथिक में बोले तो कौन से ह्यूमन्स रहते थे? होमो इरेक्टस रहते थे, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है। चलो ये पढ़ो। नेक्स्ट कौन है? किसका है? हाँ आप पढ़ो। Animal fossils are useful to understand the paleo-environmental context in the थोड़ा सा तेज, किताब ऊपर ही उठा लो। हाँ थोड़ा तेज पढ़ो। people lived in the Narmada Valley. Animal fossils of the Elephas, नेमेडिकस Nematicus, giant, tusked prehistoric elephant, Stegodon, Gensa, a giant prehistoric elephant, Bos Nematicus, wild cattle, and Equus Nematicus, extant great horse-like animal, have been recovered. Teeth of excess evidence of water buffalo have been uncovered at Athirapakkam. They suggest an open wet landscape near the Chennai region in the prehistoric. बैठ जाओ। ह्यूमन फॉसिल्स कौन से थे? होमो इरेक्टस थे। अब एनिमल फॉसिल्स की बात करते हैं कि एनिमल फॉसिल क्या मिला इस पीरियड के दौरान। ठीक है। तो सबसे पहले द एनिमल फॉसिल्स आर यूजफुल टू अंडरस्टैंड द पैलियो एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट। इसका मतलब क्या है? पैलियो मतलब ओल्ड, एनवायरमेंटल एनवायरमेंट रिलेटेड, कंटेक्स्ट मतलब इन कनेक्शन विद। ठीक है ना, इन कनेक्शन विद। कंटेक्स्ट मतलब उस एनवायरमेंट में। ठीक है ना। तो जो एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट है हमारा, जो हमारा एनिमल फॉसिल्स है, वो किस लिए यूजफुल है? हमारा उस टाइम का कंटेक्स्ट समझने के लिए, हमारा जो ओल्ड एनवायरमेंट कैसा था वो समझने के लिए हमारा ये जरूरी है कि हम एनिमल फॉसिल्स को भी स्टडी करें। ओल्ड एनवायरमेंट, उस टाइम का एनवायरमेंट कैसा था, वो कैसे पता लगेगा कि किस टाइप के एनिमल्स रहते थे? तो उससे पता लग जाएगा कि वो एनिमल्स के फीचर्स क्या होते हैं। अगर एनिमल तेज दौड़ने वाला है यानी कि मैदान में रहते थे, अगर वो एनिमल्स मांस खाने वाला यानी वो जंगल में रहते थे, तो वो एनिमल के फॉसिल्स किस जगह से मिले हैं, हमें उस जगह का ये पता लग जाएगा कि वो जगह उस टाइम पे एनवायरमेंटली कैसी थी। वो प्लेन थी, वहां जंगल था, वेट एरिया था, लेक था, समुद्र था, तो हमें उस फॉसिल से पता लग जाएगा कि ये किस जानवर का है, ये किस जगह पे रहता है, तो हमें उस जगह का आइडिया हो जाएगा कि इस जगह की इस जगह पे हम एनवायरमेंट की बात करें तो एनवायरमेंट कैसा था। तो एनिमल फॉसिल्स हमें वो समझने में मदद करेंगे। ठीक है ना। हमें पता है कि कौन कौन जानवर किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ही पाए जाते हैं, तो उससे हम उस जगह के एनवायरमेंटल कंडीशंस पता लगा सकते हैं कि वो कंडीशंस कैसी होगी। जैसे जानवर का नाम लो तो ऑटोमेटिकली दिमाग में कोई प्लेस आ जाएगी कि ये तो वहां पाए जाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए एनिमल फॉसिल्स उस चीज को समझने के लिए जरूरी है कि जो लोग वहां पर रह रहे थे वो किन एनवायरमेंटल कंडीशंस में रह रहे थे। ठीक है। तो इससे हमें वो पता लगेगा इन विच पीपल लिव्ड, यानी उस एनवायरमेंट को समझेंगे जिस एनवायरमेंट में लोग वहां पर रह रहे थे। इन द नर्मदा वैली, जहां पर हमें क्या मिला है? ह्यूमन फॉसिल मिला है, होमो इरेक्टस मिला, उसका स्कल मिला। ठीक है ना। इन द नर्मदा वैली एनिमल फॉसिल्स ऑफ एलिफास नेमेडिकस, ये किसका नाम है? बेसिकली जियांट टस्क्ड प्री हिस्टोरिक एलिफेंट। ये टस्क क्या होता है? टस्क एलिफेंट टीथ देखा है, उसे हम टस्क बोलते हैं। जो एलिफेंट टीथ होता है उसे हम बोलते हैं टस्क। तो बहुत बड़े बड़े दांतों वाले उस टाइम पे एलिफेंट थे। ठीक है ना। उनके फॉसिल्स मिले। यहां पर आपको फोटो दिखाई दे रहे होंगे, ये
उनके टीथ बहुत बड़े बड़े थे, ठीक है ना। इस टाइप के एलिफेंट उस टाइम पे पाए जा रहे थे। देन उसके बाद स्टेगोडॉन, गणेशा। गणेशा किससे रिलेटेड है? हाथी, गणेश, है ना। एजियांट प्री हिस्टोरिक एलिफेंट, ये भी बहुत बड़े, इससे भी बड़े दांत थे उसके, तो ये बहुत बड़े बड़े हाथी होते थे, ठीक है। हाँ, मैमथ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। मैमथ अलग नाम हो जाएगा, उसके वो फिर फीचर्स अलग हो जाएंगे थोड़े से, ठीक है। वो फिर हमें कुछ ज़्यादा ही साइंस में घुसना पड़ेगा उसके लिए डिफ्रेंशिएट करना है। अदरवाइज कह सकते हैं बिग एलिफेंट कह लो यहाँ पर, सिंपल से, ठीक है। देन उसके बाद बोस नेमेटिकस, ये कौन है? ये हमारे वाइल्ड कैटल्स, जंगली पशु जो हमारे थे, तो ये इनके फॉसिल्स भी मिले। इनके फॉसिल्स मिले, इससे हमें पता क्या लगा, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। एंड इक्वस नेमेटिकस, इक्वस क्या होता है? इक्वस इज रिलेटेड टू हॉर्स, हॉर्स जेनस में यहाँ लिखा होगा आपका, ये देखना। इक्वस रेफर्स टू द जेनस ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग हॉर्सेज, एसेज एंड जेब्रास, ठीक है ना, घोड़े, गधे और जेब्रा। इसका जो जीनस है वो सेम है। जीनस का मतलब क्या होता है? फैमिली, फैमिली, फैमिली। एक ही सिमिलर टाइप के जो एनिमल्स हैं उन्हें हम एक जीनस में काउंट करते हैं, उन्हें हम एक जीनस में, एक फैमिली में काउंट करते हैं। तो ये सब एक ही फैमिली से निकले हुए एनिमल्स हैं, चाहे वो हॉर्स है, चाहे एसेज है, चाहे जेब्रा है। तो इसीलिए वो जेनस हम बोल देते हैं कि उनका जेनस सेम है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं इक्वस, जो इस जेनस का हम बोल रहे हैं। इक्वस इज रिलेटेड टू हॉर्स, अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें। जब हम वोकैब पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे इक्वस जो है एक प्रीफिक्स और सफिक्स में भी यूज किया जाता है, और जहां पर यूज किया जाता है उसका मतलब हॉर्स से ही होता है, ठीक है ना। तो ये हॉर्स टाइप के जो एनिमल्स हैं, इनके भी हमें एविडेंस मिले, हैव बीन रिकवर्ड, इनके एविडेंस हमें मिले हैं। तो इससे पता क्या लगा? टीथ ऑफ इक्वस मिला, एविडेंस ऑफ वाटर बफेलो भी मिला है, हैव बीन अनकवर्ड फ्रॉम अथिरम्पक्कम। नर्मदा से तो हमें ये सब मिले, और अथिरम्पक्कम से हमें क्या मिला है? एक तो टीथ ऑफ इक्वस, इक्वस में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और एविडेंस ऑफ वाटर बफेलो। अब वाटर बफेलो मिली है तो इससे पता लग गया कि वहां पानी बहुत होगा। वाटर बफेलो मिली है, इसका मतलब ये है कि वहां पानी रहा होगा अथिरम्पक्कम के आसपास, तो इसीलिए यहां पर लिख दिया दे सजेस्ट एन ओपन वेट लैंडस्केप नियर चेन्नई रीजन। और ये सब यहां मिले, इसका मतलब बड़ी बड़ी घास होती होगी। हाथी कहां पाया जाएगा? जहां बड़ी बड़ी घास होगी, तो वहां पे वेजिटेशन बहुत ज्यादा होती होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए हम एनिमल से वहां के एनवायरमेंटल कंडीशंस का पता लगा सकते हैं। तो एनिमल फॉसिल्स जो मिलेंगे वो एनवायरमेंटल कंडीशंस बताएंगे। जैसे वाटर बफेलो ने हमें क्या बताया कि चेन्नई के आसपास का रीजन थोड़ा सा वेट होगा, बहुत ओपन एरिया में होगा, क्योंकि ओपन एरियाज में रहते हैं ज्यादातर, क्योंकि इक्वस मिला है, घोड़ा है, प्लेन एरिया चाहिए उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर एयर क्या मिलेगा हमें? वेट और ओपन लैंडस्केप मिलेगा नियर द चेन्नई रीजन इन द प्री हिस्टोरिक पीरियड। ह्यूमन फॉसिल्स ने हमें क्या बताया? कौन से ह्यूमंस रहते थे, और एनिमल फॉसिल्स ने बताया वो किस एनवायरनमेंट में रहते थे, और स्टोन टूल्स ने बताया कि वो करते क्या थे। तो इससे हमें उस जगह के बारे में, उस पीरियड के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल गई। और ये बाकी जगह से अलग है, इसीलिए इस पीरियड का नाम अलग रखा हमने, लोअर पैलियोलिथिक रखा। अब कैसे अलग है वो हम आगे पढ़ेंगे। अब अगला जो पैराग्राफ है दैट इज रिलेटेड टू वे ऑफ लाइफ, कि उस टाइम के लोग रहते कैसे थे, उस टाइम के लोग रहते कैसे थे, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।